Hello and welcome to this e-learning series for the subject of Information Technology, class 9th. After completing 4 units, we are at unit number 5, that is green skills. In this session, we will be discussing about the environment around us and the problems that we are facing nowadays related to environment and how we can tackle them. Okay, so let's get started. The environment around us affects all aspects of our life, and all our day to day activities also affect the environment. Okay, तो हम पे भी इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है और हमारा जो इफ़ेक्ट है हम उस पर इन्वायरमेंट पे भी अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ का प्रभाव डालते हैं. Those who live in cities get their food supply from surrounding villages and in turn are dependent on forests, grasslands, rivers, seashores and for resources such as water, fuel, wood, water, etc. We use resources from which food is made and we depend on the community of living plants and animals. It forms a web of life. Everything around us forms our environment and our lives depend on the flora and fauna around us. Similarly, our school environment comprises the physical and the socio-cultural environment. The physical environment includes school building, classroom, library, laboratory, kitchen, toilets, garden and the playground. The socio-cultural environment is manifested by the school with climate, teaching, by the teachers, student activities, inclusivity, attitude towards learning, social behavior, discipline, respect for each other's caste, religion and creed, achievement of students, etc. Over the years with economic development, there has been an increase in environmental pollution. आप जानते हैं धीरे धीरे जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ रहा है. हम धीरे धीरे एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत प्रगति कर रहे हैं. काफ़ी अनाज उग रहा है. फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की मदद से हम हाइब्रिड क्रॉप्स की मदद से और ज़्यादा अनाज पैदा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन उन केमिकल से हमारा जो भूमि है और हमारा जो वातावरण है वो भी खराब हो रहा है. सो दिस थ्रेटन्स द स्टेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट. So we need to plan the maintenance of the areas in a sustainable manner. Sustainable manner means जो कि बहुत लंबे समय तक खिंच सके, चल सके. So that we can enjoy the good environment created by us. It may be sustainable agriculture, developing eco-fashion design, manufacturing of solar panels, designing environmentally sustainable homes. Okay. So let's begin with the session number 1, that is society and environment. Both are interconnected. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके प्रावधान किए गए हैं जिससे कि हमें करना चाहिए, अपने जो इन्वायरमेंट है उसका प्रोटेक्शन हमें करना चाहिए. और उसका आर्टिकल है 48A. क्या कहता है ये? द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेव गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि उनका जो वाइल्ड लाइफ है और जो फॉरेस्ट है वो सिक्योर रहे. People live together in villages, cities, states and countries, thus forming a society. Society interacts with the environment and changes it at the same time. The interaction of society with the environment sometimes affect the ecological balance in the environment. With the increase in population and economic activities, people's interference with nature has started destroying the environment. हो रहा है कि हम धीरे धीरे प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं. The industrial development and intensive agriculture that provides the goods for our increasing consumer-oriented society uses up large amount of natural resources. हम जो है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं और धीरे 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 वो चीज़ खत्म होती जा रही है. So first we will discuss natural resources. A resource can be defined as any natural or artificial substance, energy or organism which is used by human being for its welfare.
तो हम लोग अपने भलाई के लिए जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो सब रिसोर्स कहलाती हैं. Ever since the earth was inhabited, humans and other life forms have depended on things that exist freely in nature to survive. हम उन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं जो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल हैं. These things include water, land, soil, rocks, forest, animal, fossil fuel, minerals. They are called natural resources as they are the basis of life on earth. We use these resources to survive and also to function properly. Natural resources can be consumed directly or indirectly. जैसे हम फॉरेस्ट पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, बायोमास, हेल्थ, रिक्रिएशन, इंक्रीज लिविंग कंफर्ट के लिए हम फॉरेस्ट पे डिपेंड है, क्योंकि वहाँ से हम लकड़ी वगैरह उन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को आसान बनाते हैं. जबकि फॉरेस्ट जो हैं वो क्लाइमेट को सही बनाए रखने में, फ्लड को रोकने में, स्टॉर्म से प्रोटेक्शन करने में और जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है उसमें मदद करते हैं. The resources which have been developed by human beings during the growth of civilization are called artificial resources. जैसे बायोगैस, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक, ये सब हमने डेवलप किए, तो ये कहलाते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज. कौन कौन से हैं नेचुरल रिसोर्सेज हम देखते हैं. लैंड रिसोर्सेज, ये लैंड वेरी इंपॉर्टेंट. हर चीज़ के लिए आपको लैंड की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो, नॉन एग्रीकल्चरल हो. ठीक है. सेकेंड इज फॉरेस्ट रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. It is a natural self-sustaining community characterized by vertical structure created by presence of trees. Wood is used for making furniture, tool handles, railway sleepers, matches, many things. Okay. So forest resources are very important. They contains flora and fauna. Okay. Third main important resource is water. Water covers about 3/4 of Earth's surface and is a necessary element for life. It includes rivers, lakes, ocean, underground aquifers. Okay, water is a vital resource in agriculture, industrial, household, and recreational activities. हर एक्टिविटीज़ में आपको पानी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. Next is mineral resources. A mineral deposit is a concentration of naturally occurring solid, liquid, or gaseous material in or on the earth crust. या तो अंदर होगा या उसके ऊपर हो सकता है. इट इज़ इन सच अ फॉर्म एंड अमाउंट दैट इट्स एक्सट्रैक्शन एंड इट्स कन्वर्जन इनटू यूजफुल मटेरियल्स और आइटम्स आर प्रॉफिटेबल नाउ और मे बी सो इन द फ्यूचर. तो आप उन सब चीज़ों को क्यों निकालते हैं? अगर वो अर्थ की क्रस्ट में है या उस अर्थ पे मौजूद है, हम इसलिए उनको निकालते हैं कि उनसे हमें फ़ायदा होता है. ठीक है. मिनरल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड इंक्लूड मेटल्स, non-metals. Okay, some mineral consist of a single element such as gold, silver, diamond, and sulfur. Next is food resource. Resources that are used as food or provide food for organisms are called food resources. Plants serve as food resources for herbivorous and omnivorous. Animals and birds are the source for food for many organisms who are carnivorous or omnivorous. Agriculture is the main source of plant food resource for human beings. Next is energy resource. An energy resource is something that can produce heat, power life, move objects or produce electricity. How we can generate electricity? It can be through nuclear fusion in the sun, that is solar energy, gravity generated by the earth and moon, nuclear fission reaction, energy in the interior of the earth, and energy stored in chemical bonds. Okay. But the fossil fuels that we use have a disadvantage that they are non-renewable. Okay. So the natural resources can be categorized in the following ways. First one is inexhaustible resources. The resources which cannot be exhausted by human consumption. जो ख़त्म ही नहीं हो सकते हम जितना भी कंज्यूम करें. वो कौन से हैं? वो solar radiation, wind power, water power and tidal power. Okay, so these are inexhaustible. Next is exhaustible, जो ख़त्म हो जाएंगे, जो लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है, जैसे
स्टॉक ऑफ कोल इन द अर्थ इज लिमिटेड, एंड अगर हम रोज़ उसको निकालते रहे तो कभी एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सारा कोल खत्म हो जाएगा. थर्ड इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज that are constantly available like water or can be reasonably replaced or recovered, like vegetative lands. Even though some renewable resources can be replaced, they may take many years to form and that does not make them renewable. कुछ तो ऐसे हैं जो रिन्यूएबल तो हो जाते हैं लेकिन बहुत टाइम लेंगे, तो उसको रिन्यूएबल नहीं कहा जा सकता. Okay, then we have non renewable resources that cannot easily be replaced once they are destroyed. कौन से हैं? फॉसिल फ्यूल, मिनरल्स. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टेबल में नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासों में. सो कोल इज नॉन रिन्यूएबल, पेट्रोलियम इज नॉन रिन्यूएबल, वेर एज रिन्यूएबल में कुछ देख लीजिए वाटर एंड सन, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. सिमिलरली एलपीजी, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर प्लांट्स, मिनरल्स, ये नॉन रिन्यूएबल है. विंड, बायोमास, सॉइल, फॉरेस्ट, ये जो है रिन्यूएबल एंड रिसोर्सेज में आते हैं. ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो हुआ करती थी उसमें पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, तो उनको रिसोर्सेज भी कम चाहिए रहते थे. ठीक, तो वो अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचा के रखते थे. लेकिन अब क्या है, ज़्यादा हम उपभोग कर रहे हैं, सोसाइटी बढ़ती जा रही है, जनता बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे जो है रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं. सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच कॉज डैमेज टू द एनवायरनमेंट आर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जब हम उसको खनन करेंगे, उसका दोहन करेंगे, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी. पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, इनसे जो है हमारे रिसोर्सेज जल्दी ख़त्म हो सकते हैं. तो देखते हैं इन एक्टिविटीज़ से कैसे हमको नुकसान हो रहा है. पहला है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. किसी चीज़ का भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन खराब होता है. ठीक है, दिस रिजल्ट्स व्हेन हार्वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज एक्सीड्स देयर रिप्रोडक्शन और रिप्लेनिशमेंट. जिस गति से वो चीज़ दोबारा बन सकती है उससे भी तेज़ गति से अगर आप उसको निकालते चले जाएंगे तो वो बनना, उसका जो रिजल्ट है वो दैट विल बी कॉल्ड ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, तो जिस गति से वो रिकवर कर रही है उससे तेज गति से अगर आप उसको निकाल रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं, तो वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स, excessive grazing of pastures by animal, destruction of forests and water aquifers, overfishing and overhunting. ठीक है, मछली भी, अगर आप मछली मारना एक बहुत बड़ा उद्योग है, लेकिन अगर मत्स्य उद्योग को अगर आप बहुत ज़्यादा मछली मार देंगे, एक ही साल में आपको पूरा समुद्र ख़त्म कर देते हैं, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको फिर मछलियाँ नहीं मिल पाएंगी. तो उसके लिए से रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं. माइनिंग. Mines are dug below the earth's surface to get ores. The ores are then refined to extract the valuable elements such as metals, gems, minerals. Some of the environmental impacts of mining include erosion, formation of sinkholes, loss of biodiversity and contamination of soil, groundwater and surface water by chemicals from mining processes. जो खनन का उद्योग है उससे भी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है. डिफॉरेस्टेशन आप जानते ही हैं, फॉरेस्ट को हटा देना, और क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट और स्टैंड ऑफ ट्रीज वेयर द लैंड इज कन्वर्टेड टू अ नॉन फॉरेस्ट यूज सच एज एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज. तो धीरे धीरे जो है वन का क्षेत्र जो है कम होता चला जाएगा. वन का क्षेत्र कम होता चला जाएगा तो उसमें जो रहने वाले जीव थे उनके रहने का क्षेत्र भी कम हो जाएगा. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉल्यूशन. It is derived from the Latin word pollure, means to soil or defile, that means contaminate. Pollution is caused by pollutants which may be solid, liquid or gaseous in nature. Pollution is the effect of undesirable changes in our surroundings that have harmful effects on plants, animal and human beings. तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी एक्टिविटीज़ के थ्रू ही पैदा होती हैं और इनका वातावरण पे गंदा इफेक्ट पड़ता है.
जैसे फैक्ट्रीज कंज्यूम अ लॉट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड रिलीज हार्मफुल केमिकल्स इन एयर, लैंड एंड वाटर, दस कंटेमिनेटिंग द एटमॉस्फेयर। तो फैक्ट्रीज से क्या है, वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। ओके, दे ऑल्सो पॉल्यूट द एयर थ्रू फॉसिल फ्यूल इमिशन। आप देखते हैं चिमनी लगी होती हैं जो बड़ी बड़ी कारखाने होते हैं उनके ऊपर, उसमें से धुआं लगातार निकलता रहता है, तो एयर पॉल्यूशन भी होता है। वो लोग जो अपना वेस्ट वाटर निकालते हैं अपने इसका फैक्ट्री का, तो वो पानी में मिलता है, नदियों में जाता है, तो उससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है। ओके, सो दीज emissions include carbon dioxide, methane and nitrous oxide which are harmful to the living beings. Okay, so pollutants are of two types, ऐसे pollutants that can decompose और ऐसे pollutants that cannot decompose। ठीक है, जैसे वेजिटेबल वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, पेपर, वुड, ये सब चीज़ें जो है वेस्ट तो हैं लेकिन ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती हैं। बट प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, मरकरी और लेड जैसे ये सब चीज़ें जो हैं ये डिकम्पोज नहीं होती। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे पॉल्यूशन होता है? जो फ्यूम्स निकलती हैं व्हीकल वाहनों से, उनसे भी एयर पॉल्यूट होती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर, हम उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल्स डाल देते हैं, उससे हमारी जो सॉइल है वो ख़राब हो जाती है। प्लास्टिक वेस्ट से हमारी सॉइल ख़राब होती है। ठीक है, और इससे फ्लोरा एंड फौना भी जो है डेंजर में आ जाते हैं। डेंजरस गैसेस, CFC, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये छोड़ी जाती हैं, तो इनसे भी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने सुना होगा, उससे भी वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है। लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, तो ये हमने टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आपने पहले भी पढ़े होंगे सोशल साइंस में। सो लैंड पॉल्यूशन क्या है? डैमेज टू द लैंड बिकॉज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। और वाटर पॉल्यूशन, एडिंग हार्मफुल सब्सटेंस एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोनिज्म्स टू रिवर, लेक्स एंड ओशंस। और एयर पॉल्यूशन, एडिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। क्या होता है? लैंड पॉल्यूशन में डिजीजेज हो जाते हैं, डिसेंट्री, कोलेरा एंड टाइफॉइड जैसे। लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर यूज ऑफ फॉरेस्ट, फार्म्स एंड होम्स। वाटर पॉल्यूशन से क्या होगा? कैसी डिजीजेज होती हैं? डिसेंट्री, डायरिया, जॉन्डिस, टाइफॉइड, ऐसी डिजीजेज होती हैं। ओके, लोकल अर्निंग्स लाइक टूरिज्म और फिशिंग जो होती है, इनसे इफेक्ट होती हैं। अगर आपके मान लिया कोई लेक है, वो लोग घूमने आते हैं, अगर वो पॉल्यूट हो जाए तो लोग नहीं घूमने आएंगे, तो आपकी जो अर्निंग्स हैं वो कम हो जाएंगी। और आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने वाला पानी, जो वैसे ही बहुत कम है इस धरा पर, तो वो और कम होता चला जाता है। एयर पॉल्यूशन से क्या होता है? हार्ट एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, कैंसर्स होते हैं। और इससे क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा, सूखा पड़ सकता है और बाढ़ भी आ सकती है। तो ये सब चीज़ें से होती हैं। क्यों होता है लैंड पॉल्यूशन? फॉरेस्ट को काटने से, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का अत्यधिक इस्तेमाल करने से, माइनिंग से, और रिलीज ऑफ सीवेज, टॉयलेट वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड केमिकल वेस्ट, अगर आप इसको ज़मीन पे डाल देते हैं तो इससे लैंड पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है? throwing waste in water, leakage from sewer lines, release of waste water from houses, farms and factories, और एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज फ्रॉम शिप्स। आपने कई बार देखा होगा समुद्र में बड़े बड़े जहाज़ों में तेल का आयात निर्यात किया जाता है, तो कई बार उनमें से रिसाव हो जाता है और वो पूरा तेल जो है समुद्र में फैल जाता है। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? फ्यूल जलाने से, स्मोक फ्रॉम ट्रैफिक, बर्निंग वेस्ट, क्रॉप्स की रिमेन्स, जो हम पराली आजकल जला रहे हैं लोग, तो उससे भी बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। आप देख रहे हैं दिल्ली में जो एयर की कंडीशन है वो बहुत नीचे स्तर पे आ चुकी है। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज जो निकलता रहता है, और डस्ट जो कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में जो डस्ट उड़ती है, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। कैसे प्रिवेंट किया जाए? ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो लैंड वाले पॉल्यूशन को आप कैसे कर सकते हैं? वेस्ट को रिड्यूस करके, हम वेस्ट प्रोडक्ट को सेग्रीगेट करके, जैसे आपने देखा होगा आजकल ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मूवमेंट में आपको जितने भी डस्टबिन दिखाई देंगे उसमें आपके
जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको सेग्रीगेट करने के लिए आपको अलग अलग बॉक्सेस दिखाई देते हैं। ट्रीज प्लांट करे जाएं, नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स अपनाई जाएं, बायोडिग्रेडेबल आइटम्स यूज़ किए जाएं। के उसके बाद पानी को पॉल्यूशन से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट हम अपने पानी के जो स्रोत हैं उनमें न डालें, केमिकल, मेडिसिन्स, ऑयल ये सब हम नालियों में न डालें, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो है वो कम करें, और सीवेज और फैक्ट्री वेस्ट का जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, और जो हमारा पानी हमारे पास अवेलेबल है जो कि बहुत सीमित है उसका सही इस्तेमाल किया जाए। और एयर पॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे बचने के लिए हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करें, ऐसी व्हीकल्स यूज़ करें जो पॉल्यूशन कम करती हों। जैसे आजकल देख रहे हैं आप BS6 स्टैंडर्ड की जो है वाहन आ रहे हैं जिसमें कम से कम पॉल्यूशन होता है। और वेस्ट और लेफ्ट ओवर क्रॉप्स को जलाने से रोकें। आजकल सरकार अनुरोध कर रही है किसानों से आप पराली न जलाएं क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का जो है जो कि हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं उनका भी हम प्रयोग कम करें। If we separate all our waste before throwing it away, it will help us manage the non-biodegradable pollutants in a better manner. Okay? अगर आप if you keep all your vegetable waste covered in soil for some weeks, it will make the soil fertile. Okay? And you will have less waste to throw away. ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके वेजिटेबल वेस्ट को अगर आप डंप कर देते हैं ज़मीन में तो उससे खाद बनती है, तो उससे आपकी जो है भूमि की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। But harmful waste can be separated from water before it mixes into our drinking water. Okay? So let us now discuss something about climate change. तो कभी आपने देखा होगा कि अगर आपकी कार जो है बहुत देर तक अगर धूप में खड़ी रहती है और विंडोज़ बंद रहती हैं और अब आप उसमें जब बैठने जाते हैं तो आपको बिल्कुल घुटन सी महसूस होती है। ठीक है, आप लगता है कि आप आग की भट्टी के अंदर बैठ गए। तो वैसे ही अर्थ हैज़ ऑल्सो बिकम अ हॉट प्लैनेट because of burning fossil fuels like coal, petrol, diesel. Okay, these gases trap and prevent the earth's heat from escaping. ठीक है, या आपने ग्लोबल वार्मिंग में सुना होगा कंसेप्ट कि ये जो गैस हैं ये जो हीट बाहर निकलती है अर्थ से उसको रोकती हैं। सो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। फॉरेस्ट आर मेन मैकेनिज्म फॉर द conversion of carbon dioxide into carbon and oxygen. The loss of forest cover coupled with the increasing release of carbon dioxide and other gases through industrialization contributes to the greenhouse effect. पेड़ जो हैं कम होते जा रहे हैं और हमारा जो ये गैसों का उत्सर्जन है ये बढ़ता जा रहा है। तो जो पेड़ हेल्प करते थे हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में वो उस गति से हमको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कम करते चले जा रहे हैं। Some greenhouse gases occur naturally and enter the atmosphere as a result of both natural process and human activity. Okay? Greenhouse gases that occur both naturally and from human activities include water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and ozone. Other greenhouse gases have essentially no natural resources but are the side products of industrial processes or manufactured for human purposes. कौन से? Cleaning agents, refrigerants, and electrical insulators. These include the fluorinated gases, chlorofluorocarbons, hydrofluorocarbons, and these greenhouse effect cause snow to melt very fast. तो आप देख रहे होंगे आजकल सुनते हैं आपकी जो है बर्फ़ पिघलने की जो गति है, जो ध्रुवों पे जो बर्फ़ है वो बहुत जल्दी जल्दी पिघल रही है इन गैसेस की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड emissions into the atmosphere from burning oil, coal and gas for energy use is a serious problem as it is harmful to the environment. Carbon dioxide in atmosphere has increased by 31% since pre-industrial times, causing more heat to be trapped in lower atmosphere. आजकल आप देख रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। Next, harmful radiation.
यू माइट बी नोइंग दैट द एटमोसफियर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको आने से रोकता है। कैसे? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है ऊपर, जो कि इन गैसेस को, इन रेडिएशंस को अंदर आने से रोकती है। तो ओजोन एक गैस है जो ऐसे रेडिएशंस को रोकती है। क्लीनिंग केमिकल्स, कूलेंट्स इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स, ये क्या करते हैं? रिलीज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो ओजोन की लेयर को पतला करते जा रहे हैं। क्या कौन से हैं वो? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं ये चीज़ें। तो उससे क्या होता है? आपकी ओजोन लेयर जो है धीरे धीरे पतली होती जाएगी और आपके वो जो रेडिएशंस, जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं सूर्य के किरणों में, वो धरती पे आएंगे और हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी हमारे लिए। ठीक है। So these destroy the ozone in atmosphere and making holes in the ozone layer. The harmful radiation come in through the holes and cause increased incidence of health disorder. कौन से? स्किन कैंसर जो होते हैं मोस्टली इनसे होते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल डिजास्टर। आपने सुने होंगे आजकल बहुत सारी फ्लड्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड होते रहते हैं। ठीक है। जहाँ पे रोड बन रही है अभी बद्रीनाथ केदारनाथ, उस एरिया में हमेशा लैंडस्लाइड आपको न्यूज़ में सुनाई देता है कि आज लैंडस्लाइड हो गया, मार्ग बंद हो गया। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से भी हमारे जो नेचुरल इफेक्ट है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रहा है, तो उसी का रिजल्ट है ये सब चीज़ें। ओके। हम क्या कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानना पड़ेगा। लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट। तो पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने आस पड़ोस के बारे में और वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। Then learning through the environment. Learning through the environment is a process of learning while being engaged with environment inside and outside the classroom. तो क्लासरूम में आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें आपके पर्यावरण से आपको जोड़ा जाता है, जिससे कि आप उसके बारे में जान सकें। ओके। लर्निंग बाय डूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू एन एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट। आपको विजिट कराई जाती है आसपास के एरियाज़ में जहाँ आप देखते हैं फ्लोरा एंड फौना। Direct contact with the environment, it provides the relevant context of acquiring knowledge, skills. Okay. Then learning for the environment. That means you should be aware about your responsibilities toward the environment. Okay. Now we are coming to a very important topic, that is 3 R's. Reduce, reuse, recycle. These are called 3 R's. Reduce, do not use what you do not need. जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है उसका यूज़ मत करो, तो अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको कम करो, दैट इज़ रिड्यूस। ओके। उससे क्या होगा? वेस्ट जनरेशन कम होगा, हमारे जो रिसोर्स हैं उन पर प्रेशर कम पड़ेगा, उनका दोहन कम होगा। ओके। रीयूज, रीयूज द मटेरियल फॉर अदर पर्पसेज सच एज मेकिंग पिलो कवर्स और रैग्स आउट ऑफ द यूज शर्ट्स और लेडीज सूट्स। तो घर में जो आप देखते होंगे अपने घरों में, तो जो हम कपड़े होते हैं पुराने उनको मिला के क्या बना देते हैं? जोड़ के तकिया बना लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रीयूज। देन द थर्ड आर इज रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग इज रीयूजिंग सम कंपोनेंट ऑफ द वेस्ट दैट मे हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है। तो जो उन चीज़ें दोबारा यूज हो सकती हैं उनको रिसाइकिल किया जाए। So these are very important 3 R's. Okay. So इन 3 R's को फॉलो करके ही हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यह है हमारे एजुकेशन के कंटेक्स्ट में, पेपर फॉर ईच नोटबुक मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ए ट्री। डू नॉट लीव टू मच स्पेस वाइल राइटिंग द टेक्स्ट। हम आपसे कहते हैं ना ज़्यादा जगह मत छोड़ के लिखो, पास पास लिखो। तो क्यों? क्योंकि एक पेपर जो है अपने में एक ट्री को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो कागज़ है वो ट्री से ही बनता है। तो आप कम से कम जगह छोड़ के लिखें, बहुत जगह पेज का बर्बाद न करें, जिससे कि उस पेड़ कम कटेंगे। ठीक है। सो रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ पेपर। देन रीयूज, use both sides of paper for writing. Give your old books and notebooks to someone who can use them. In this way you will promote reuse of paper. ठीक है। विद्यादान करें, अपनी किताबें
अपने और जो आपसे छोटे क्लास में पढ़ने वाले हैं उनको दें, जिससे कि वही उसको यूज़ करें। तो नए नए किताबें न खरीदें, आप अपनी किताबें अगर आपके आप काम के नहीं है तो आप दूसरों को दे दें, जिससे कि ट्रीज़ कम कटेंगे और पेपर जो होगा रीयूज़ हो सकेगा। देन रिसाइकिल, पेपर इज रिसाइकिल्ड इनटू मेकिंग पेपर अगेन। ओके, तो पेपर क्या है, वापस उसको आपने जो लिखा उसको वापस मशीन्स के थ्रू रिसाइकिल करके उनसे हम दोबारा पेपर बनाया जा सकता है। सो दिस इज रिसाइकिल। So this was an example of 3 R's in our and your life: reduce, reuse and recycle. So these are some actions for saving the environment. Burning materials avoid किए जाएं. Okay, using natural ventilation और fans, एयर कंडीशनर की जगह आप यूज़ करें. तो लीविंग इलेक्ट्रिकल लाइट्स और एप्लीकेशंस ऑन, एप्लीकेंट्स ऑन. सो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका काम पूरा हो गया तो लाइट बंद कर दीजिए. आपके क्लासरूम से आप बाहर निकल रहे हैं, लाइट जली हुई है, तुरंत आपको याद आना चाहिए कि नहीं मुझे लाइट बंद करनी है, बंद कर दीजिए. तो एनर्जी यूज़ कम कीजिए. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना शुरू कीजिए कार्स की जगह. सोलर एंड विंड एनर्जी का यूज़ कीजिए. वेस्ट को रिवर्स में मत डालिए. रिसाइकिल्ड वाटर का यूज़ कीजिए. वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करिए. प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करना अवॉइड कीजिए. और जब भी आप वेस्ट को थ्रो करते हैं तो उनको अलग अलग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल में अलग अलग सेग्रीगेट करके ही उनको डालिए. केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज़ न करें. ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें. ओवर यूज़ ऑफ पेपर ये अवॉइड करें. बिना मतलब के प्रिंट आउट देना, बिना मतलब के पेपर फाड़ के वेस्ट कर देना, ये सब चीज़ें ना करें. और पेपर को रीयूज़ करें, जिससे कि वो पेपर रिलेटेड उनसे पेपर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें. पानी का अत्यधिक इस्तेमाल न करें. जहाँ पे पानी जितनी कम से कम ज़रूरत में आप इस्तेमाल से काम चला सकते हैं उससे करें. और अपने नहाने के दौरान अपनी जो है पानी का जो वेस्टेज है उसको कम करें. ठीक है, तो शावर से जो है आप नहाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा वेस्ट होता है. उससे अच्छा है कि आप बाल्टी में भर के पानी से अपना स्नान करें. With this we come to the end of the session. It was a long session, लेकिन it was very informative session. ये सब चीज़ें आप अपनी सोशल साइंस की क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे इससे पहले, but it was just a revision for you and very important topics were discussed and which are very much important for our environment. क्योंकि अगर हमारा environment है तभी हम exist कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों जो हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं. ठीक है, हम दोनों की एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है. सो वी मस्ट कंजर्व अवर एनवायरमेंट. सो देयर आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर यू दैट यू हैव टू आंसर इन योर नोटबुक. वेरी इजी एज यू हैव गॉन थ्रू दिस वीडियो लेसन. सो यू विल बी finding it very easy to answer these questions and some short questions for you. Okay, what we have learnt, we can describe the relation between society and environment, and we can identify common environmental problems. Okay, so with this we come to the end of this session. It was very informative session and I hope that you must have learned something and you will conserve your environment and you will help this environment sustain for a long time. Okay, so see you in the next video lesson.